یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس اس لیے خراب ہے کیونکہ وہاں پہ جھگڑے ہو گئے. اس وقت یونیورسٹیز کے اندر جھگڑے نہیں ہو رہے. اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر پابندی لگنے سے پہلے کتنے جھگڑے ہوئے تھے, اس وقت کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں, اسٹڈی کا ریشو اس وقت کتنا تھا اور اس وقت کتنا ہے. یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر بن رہے ہو تو آپ کو کسائی بننا ہے, آپ کو صرف پیسے کمانا ہے, کہ وہ صرف پیسے کمانے کے لیے پڑھتا ہے کیونکہ آپ بھی اس سے پیسے ہی لے رہے ہو. جی السلام علیکم. آپ کی خدمت میں شہزاد چودھری حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے طلباء کی مشکلات پر, ان کے مسائل پر بات کرنے کے لیے NSF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری آج سندھ سے ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں جناب عامر حسین چانڈیو صاحب. ہم سب سے پہلے ان کے مشکور ہیں. پاکستان میں طلباء سیاست اور طلباء کے مسائل اور تعلیم میں مشکلات جتنے بھی آ رہی ہیں, خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹرز میں جو تعلیم کے لیے زیادہ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں, ان کے بہت سارے مسائل ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک پاکستان کی ایک تاریخی آرگنائزیشن کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں, تو ان کے ساتھ یہ بات کریں گے کہ سندھ کے اسٹوڈنٹس کے مسائل خاص طور پر کیا ہیں اور ان کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, وہاں کس طرح کی اسٹرگل جاری ہے, کس طرح کی جدوجہد جاری ہے, اور مزید اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے کہ کیا پاکستان میں تعلیمی سٹرکچر جو ہے وہ پاکستان کو دوسری اقوام کے مقابلے میں لانے کے لیے بہتری کی طرف جا رہا ہے یا مزید زبوں حالی کا شکار ہے. السلام علیکم جناب عامر صاحب, کیا حال ہے؟ سر سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا سندھ سے پنجاب تک کا؟ اچھا رہا. عامر بھائی یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کی ایک تاریخی اور بڑی آرگنائزیشن جو ہے طلباء سیاست کی NSF, اس کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں, تو آپ طلباء قائد ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ من حیث القوم پورے پاکستان کی بات کی جائے یا انٹرنیشنلی تعلیم کی بات کی جائے, ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر لوں کہ میں قائد نہیں, ایک چھوٹا سا کارکن ہوں, کیونکہ جس تنظیم سے میں وابستہ ہوں تو وہاں پہ کارکن ہی بن سکتے ہیں اور قائد بھی بنتے ہیں, مگر اس وقت ہم میں سب سے زیادہ کارکن بن کے کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو قائد کی ہمیں تصویر دکھائی گئی ہے کہ قائد کیسے ہوتے ہیں, میں نہیں چاہوں گا کہ وہ قائد مجھے کہا جائے. اب دیکھیں اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں یا جو تعلیم کے حالات ہیں, آپ اگر دیکھیں یونیورسٹی کے جو حالات ہیں, تو اس وقت یونیورسٹیز میں اگر سائنس پڑھائی جا رہی ہے تو وہاں پہ نہ لیبارٹریز ہیں, نہ ریسرچ سینٹرز ہیں, نہ ہی کوئی تعلیم اچھی دی جا رہی ہے, اور بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جہاں پہ آپ ریسرچ نہیں کر سکتے, اور جب آپ ریسرچ کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ نیچے پڑ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تعلیم کی رسائی, اور تعلیم کی رسائی عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. اب یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس پہنچتے ہیں وہ بہت ہی کم پرسنٹیج ہے. سب سے پہلے یونیورسٹی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, یونیورسٹی کی تو یہی مسائل ہیں کہ وہاں پہ ہاسٹل نہیں ہے, ہاسٹلس میں صاف پانی پینے کا نہیں ہے, میس اچھی نہیں مل رہی ہے, ایکٹیویٹیز کرنے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے, اسپورٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. یہ تو صرف یونیورسٹی کے مسائل ہیں, مگر ہم اگر تعلیم پر بات کر رہے ہیں تو اس وقت جو پرائمری اسکولس ہیں وہاں پر تعلیم نہیں دی جا رہی, فیسیں آسمان کو چھو رہی ہیں, جس وجہ سے جو مزدور کا عام ریڈی والے کا بندہ ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا. اس کے بعد پھر ہائی اسکول کی بات آتی ہے, مڈل اسکول کی بات آتی ہے, اس کے بعد پھر ہائی اسکول کی بات آتی ہے, اس کے بعد پھر وہ یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں. تو انتہائی کم ریشو ہے جو یونیورسٹی تک پہنچتا ہے, اور پھر بھی اسے ایسی کوئی عام تعلیم, خاص تعلیم نہیں دی جاتی جو دنیا کے اسٹینڈرڈ کی طرح ہو. اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کی صرف ایک ہی یونیورسٹی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی, جو 500 یونیورسٹیز میں شامل ہوتی ہے, ورلڈ کی جو ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے. آپ کا تعلق کیونکہ سندھ سے ہے, سندھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بیکورڈ ایریاز بھی ہیں اور ایڈوانس ایریاز بھی ہیں, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر بھی بہت عروج پر ہے, اور وہاں پہ بڑی بڑی جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ عمرا کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, باہر سے حاصل کر سکتے ہیں.
जो सिंध में ख़ास तौर पर जो अंदरून सिंध है, जिसे दही सिंध भी कहा जाता है, उसमें तालीम का जो स्ट्रक्चर है या वहाँ पे स्कूलों का, कॉलेजेस का जो स्ट्रक्चर है, हम जो यहाँ बैठ के तस्वीर देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें तो वडेरों के जानवर बंधे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट, उनमें भी आप कौन सी तालीम दे रहे हैं और किस तरह के बंदे जो है आप तैयार कर रहे हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में काम करेंगे। वो लोग जिनको आप सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हो तो आपको कसाई बनना है, आपको लोगों का इलाज नहीं करना, आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो वो उसकी माइंडसेट इस तरह की बन जाती है कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ता है, क्योंकि आप भी उससे पैसे ही ले रहे हो और उसका जो ख़ानदान है पहले ही वेल इस्टेब्लिश है, तो वो क्या गरीबों के लिए काम करेगा और आम लोगों के लिए काम करेगा। इसी तरह इंजीनियर्स हैं, तो यहाँ पे तो पढ़ते हैं मगर वो बाहर चले जाते हैं और उसमें उनका भी इतना कोई खासा गुनाह नहीं है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट तैयार होकर पढ़कर बाहर आता है तो आप उसको यहाँ पे मौका नहीं देते कि वो यहाँ पर काम करे, यहाँ के मुल्क की इकानमी में हिस्सा डाले, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, मशीनें बनाए, क्योंकि ना कोई रिसर्च सेंटर इन्होंने कायम किया है, ना कोई और कहते हैं कि मौके उनको आप फराहम करते हैं। और अगर हम दही इलाकों की बात करें कि सिंध के जो गांव गूचों में जो स्कूल्स हैं, वाकई उनके हालात इस तरह के हैं। अब मेरा जो गांव है जामक चांडियो, उसमें तकरीबन 200 घर हैं, हर किसी के 4-4, 5-5 किसी के बच्चे हैं, किसी के 6-6 हैं। एक तो प्लानिंग भी नहीं है, दूसरा ये है कि सिर्फ वहाँ पे 2 क्लासेस हैं 1 to 5। अब जिनको पढ़ना होता है वो तो या फिर 10-10 किलोमीटर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर 40-40 किलोमीटर कॉलेज पढ़ने के लिए फिर उनको बाहर जाना पड़ता है। मगर उस स्कूल में भी ना वो बिल्डिंग अच्छी है, ना वहाँ पे उस्ताद आता है और ना उन स्टूडेंट्स को किताबें दी जाती हैं और ना वो पढ़ सकते हैं। अब हम उस जनरेशन की बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं कि 2050 में दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो राज करेगी और ये जो पूरी जनरेशन है ये एडवांस जनरेशन है, जिसको ये भी नहीं पता कि अलफ बे क्या है और ABC क्या है, जिन्होंने स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा कि स्कूल किस तरह का होता है। आपका ताल्लुक़ एक यानी कि तलबा सियासत से है, आप सियासी तौर पर यानी कि तलबा सियासत की जितनी भी आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, उनका काम बेसिकली तालीम के लिए स्टूडेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पर बच्चे भी जो हैं वो भी स्टूडेंट बनना चाहते हैं, उनकी तालीम का जो बुनियादी हक़ है, जिसे आज तरक्की याफ्ता दुनिया भी तस्लीम करती है कि ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो वो बुनियादी हक़ है जो खुराक के साथ साथ तालीम का उन तक पहुंचना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो तलबा सियासत है, हमें तो जब मैं भी कॉलेज में आ रहा था, घर में यही नसीहत की जाती थी कि सियासत में नहीं पढ़ना, सियासत नहीं करनी आपने। तो आप तलबा सियासत कर रहे हैं, सिंध में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करना आसान है, मुश्किल है, या किन मुद्दों को लेकर जो वहाँ पर पॉलिटिक्स की जाती है उसमें क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या क्या मसाइल हैं जो वहाँ उजागर करने की ज़रूरत है और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या कर रही हैं, क्या वो काफ़ी हैं या मज़ीद अभी तक उन चीज़ों को और मज़ीद रिफ़ाइन करना या बेहतर करना, उसके लिए मज़ीद जद्दोजहद करना उसकी ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान में कहीं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो आपको पहले से ही घर से कहा जाता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स ना करना, और वो जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ पे टीचर्स भी उसको ये कहते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो बाकायदा एफिडेविट आपसे लिख कर लेती हैं कि आप यहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं करोगे, बल्कि पॉलिटिक्स का तो नाम ही यही है कि आप अपने हक़ के लिए लड़ो। फिर उनकी मर्ज़ी होती है कि वो कितनी फ़ीसें ले रही हैं, वो कौन सा पानी स्टूडेंट्स को पिला रही हैं हॉस्टल्स के अंदर, कौन सी मेस दे रही हैं, और जो स्टैंडिंग कमेटी में फ़ैसले होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट का कोई नुमाइंदा नहीं होता। और इसके रूट्स अगर हम देखें तो वो जाते हैं जब स्टूडेंट यूनियन के ऊपर पाबंदी लगी थी 1983-1984 में ज़िया ने पाबंदी लगाई थी, और उसके बाद ये हमें कहा जाता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स इसलिए ख़राब है क्योंकि वहाँ पे झगड़े होते हैं। इस वक्त अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो क्या इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर झगड़े नहीं हो रहे?
हो रहे हैं, बल्कि हम रेशो उठा के देखें कि स्टूडेंट यूनियन के ऊपर पाबंदी लगने से पहले कितने झगड़े हुए थे, इस वक्त कितने झगड़े हो रहे हैं, स्टडी का रेशो उस वक्त कितना था और इस वक्त कितना है। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स कहीं पर भी आसान नहीं रही, मगर यह है कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मौजूद है पहले से। तो वहाँ पे अगर आप मसाइल को समझते हो, उनको देखते हो, तो फिर आपको ज़रूर बात करना भी चाहिए। अब अगर आपको घर से भी ये मिले कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स ना करें, यूनिवर्सिटी में आएँ फिर भी आपको टीचर्स ये कहें कि आप पॉलिटिक्स ना करें, एक पूरा जनरेशन गैप है। तकरीबन 38 साल हो गए स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगने से। तो एक जो बंदा तैयार होकर, या जो 40 साल का 50 साल का आदमी होगा, उसे भी नहीं पता होगा कि स्टूडेंट यूनियन क्या थी, स्टूडेंट सियासत क्या होती है। जो रियासत ने या जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने ये चीज़ प्रोपेगेंडा किया है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ही ख़राब चीज़ है। कोई पॉलिटिक्स ख़राब है तो फिर ये तमाम जितने सियासी पार्टियां हैं, बल्कि बड़े बड़े इदारे भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये क्यों करते हैं? जी, ये नैरेटिव उन्होंने ही फैलाया हुआ है कि पॉलिटिक्स ख़राब है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इलेक्शन लड़ें, स्टूडेंट यूनियंस के सियासत से आशना हो, सियासत को समझे, तो जाहिर सी बात है जब वो बाहर निकलेंगे तो सवाल करेंगे, जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो सवाल करेंगे। इसलिए उनको ऐसी जनरेशन चाहिए जो ना सवाल करे और फिर सिर्फ आपके हुक्म पर चले और जी करती रहे। सिंध में बड़े लंबे अरसे से एक ख़ास पार्टी की हुकूमत है और उसके जो चेयरमैन थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब, उनका बड़ा जमहूरियत के नारे लगाना, उनका आम आदमी की बात करना, स्टूडेंट्स की बात करना बड़ा आम रहा है पाकिस्तान में। अब उनके नवासे जो हैं, उन्होंने भी दावे वादे वही तो किए हैं कि तलबा यूनियन बहाल कर देंगे और ये कर देंगे, और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक चैम्पियन पार्टी भी वो अपने आप को कहलाती है और स्टूडेंट्स के राइट्स की भी बात करती है। आप क्या समझते हैं कि सिंध में अभी तलबा यूनियन जो हैं वो बहाल हुई हैं या होंगी, या सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरह यहाँ पे पाबंदियाँ हैं वहाँ भी अभी रखेंगे, सिर्फ वो इंतखाबात में स्टूडेंट्स की सपोर्ट हासिल करने के लिए भी वो सिर्फ नारे लगाए जाते हैं? वो सिर्फ इंतखाबात में स्टूडेंट्स की सपोर्ट हासिल करने के लिए और एक अपनी इमेज बनाने के लिए ये ऐसे नारे लगाते हैं। क्योंकि इससे पहले 2019 में जो बिल पेश हुआ, उससे पहले भी यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत में ये कहा गया था कि हम स्टूडेंट यूनियंस को बहाल कर देंगे, फिर बहाल नहीं किया गया। उसके बाद अब जो 2019 में बिल स्टैंडिंग कमेटी ने पास किया सिंध की कि हम स्टूडेंट यूनियंस को बहाल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे एतराज़ात हैं कि क्योंकि उसमें लिखा है कि सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी में आपका एक जो है मेंबर शामिल होगा, और उसमें लिखा है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते कैंपस के अंदर, एहतजाज का हक़ तो हासिल होना चाहिए। और उसके अलावा उस बिल में लिखा है कि 2 महीनों के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं, मगर आज तो तकरीबन 2 से 3 साल हो गए, अभी तक कोई इलेक्शंस नहीं हुए वहाँ पे। तो ये सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए और अपना इमेज साफ़ करने के लिए ये बातें करते हैं। आपका ताल्लुक़ NSF से है, जो एक फ़िक्री और नज़रियाती ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 60s से लेके आज तक जदोजहद की है पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। बड़ा उसकी एक जदोजहद है, एक तवील तारीख़ है। अगर उसकी बात करना शुरू करें तो उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान की तारीख़ में। आपका ताल्लुक़, क्योंकि मैं आपके साथ बातचीत का जो रुख है वो मैं सिंध की तरफ ही रखूँगा, क्योंकि यहाँ के जो ख़ास तौर पे हमारी व्यूवरशिप है, आप उसको पंजाब से कह सकते हैं, थोड़ी सी जो प्रिविलेज क्लास है यहाँ पर स्टूडेंट्स की, जो यहाँ पे बेहतर यूनिवर्सिटीज़ के हालात हैं, उनको उन हालात का पता होना चाहिए कि जो हमारे दूसरे सूबे हैं, दूसरी जो वहाँ पे नेशंस हैं, उनके साथ तालीमी शोबे में क्या सलूक बरता जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे उस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम नहीं। यहाँ पे एक मजहबी तंजीम है जिसकी आलमोस्ट पाकिस्तान के बड़े इदारों पर इजारादारी भी है, और जिस तरह भी है उसको उस तरह को टक्कर नहीं दे पाता, क्योंकि उन्होंने अपना एक ज़ोर बनाया हुआ है। सिंध की जामियात में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी हैं वहाँ पे, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं,
اور NSF کا سندھ کے تعلیمی شعبے میں کیا کردار ہے اور وہاں پہ ان آرگنائزیشنز کے ساتھ کیسے مل کے آپ اس جو ہے مقصد کو، جد و جہد کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ بہت ساری تنظیمیں ہیں اور اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو بہت کم یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ پولیٹکس اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز کر رہی ہیں۔ کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو یہاں وہاں کا جو حکمران طبقہ ہے ان کی تنظیموں نے قبضہ کر کے رکھا ہے کہ ہم ہیں تو صرف ہم ہیں، ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ کوئی کانفرنس تنظیم وہاں پہ ہے تو وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ ہم وہاں پہ جائیں۔ اگر مثال لیں سندھ یونیورسٹی کی تو وہاں پہ ایک رچ کلچر ہے کہ دوسری تنظیمیں کم سے کم اپنا ایک اسپیس بنا دیتی ہیں۔ اب بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کانفرنسوں سے وابستہ ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو پروگریسو ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ رہا ہے۔ کبھی کبھی فیسیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کے اوپر، کبھی ہاسٹل کا پانی خراب ہو جائے تو اس کے اوپر، یا دوسری اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو بھی غلط کام ہوتے ہیں یا ہیرسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ہم نے بہت سارے اتحاد بھی بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر تو ایک تصور عام ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گنڈے ہی ہیں، آپ کا تعلق لڑائی جھگڑوں سے ہی ہے، آپ کسی پارٹی کے مورے ہیں، آپ اس پارٹی کے حکم پر کسی بھی دوسری پارٹی کے لیڈر پر پتھراؤ کر سکتے ہیں، کسی بھی دوسری پارٹی کے کارکنوں کو پکڑ کے ان کے گریبان آپ چاک کر سکتے ہیں، آپ کسی پر بھی غداری کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر پنجاب کی سچویشنز میں، خاص طور پر جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، لاہور کی سچویشن یہی ہے۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی ایک تنظیم کی اجارہ داری ہے اور سرکاری اس میں بھی انہی کی اجارہ داری ہے۔ میں بیسک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کیوں ضروری ہے؟ آنے والا اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کی طرف کیوں آئے؟ اگر جو ہم کہتے ہیں کہ طلبہ یونینز کو بحال کریں، طلبہ یونینز کے بحال ہونے سے اسٹوڈنٹس کو یا خاص طور پہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یا جو ہمارے سرپرست ہیں، جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے نقصان ہوگا، وہ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کا پروپیگنڈا ہے کہ نقصان ہوگا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتے ہیں تو وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور میں اپنی اگر بات کہوں تو مجھے 4 سالوں میں کبھی سپلی نہیں لگی، اور جب سے میں NSF میں زیادہ ایکٹیو ہوا تو جو لڑائیاں اگر دوستوں سے پہلے تھیں یا رنجشیں تھیں تو وہ ختم کر دی گئی، وہ میں نے ختم کر دی، کیونکہ اگر آپ ایسی تنظیم سے واسطہ رکھتے ہو جو اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہی ہے اور اسٹوڈنٹس کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے تو آپ کو ان سب کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پٹھو تنظیمیں ہیں حکمران طبقوں کی، وہ آپ سے خواہ لڑنے آتی ہیں، اور یہ وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر جھگڑا وغیرہ ہو تاکہ ماحول خراب ہو اور اسٹوڈنٹ پولیٹکس جو ایک صحت مند پولیٹکس ہے وہ جنم نہ لے سکے۔ باقی اگر اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کی جائے تو اگر اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوگی، وہاں پہ ہر سال الیکشنز ہوں گے تو وہاں سے جو سینڈیکیٹ کمیٹی ہے، سینڈیکیٹ کمیٹی جو ہے یونیورسٹی کی، وہاں پہ 2 نمائندے بیٹھیں گے اور اسٹوڈنٹس کے خلاف جو بھی فیصلہ آئے گا وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ اس سے یہ بھی ہوگا کہ سیاسی طور پر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پاورفل ہوگا اور اپنے حقوق کے لیے بات کر سکے گا۔ یہاں پہ تو سوال کرنے پر بھی قدغن ہے کہ آپ سوال نہ کریں، کہ ایک ٹیچر آپ کو کوئی چیز پڑھا رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ سوال کریں تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے خلاف کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ وہ بھی اس کے خلاف بھی سوال نہیں کر سکتے۔ تو اسٹوڈنٹ یونین سے فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کم سے کم سوال کر سکے گا، اور وہاں پہ اگر لیبارٹری نہیں ہے، وہاں پہ اسپورٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں، کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں تو اس میں بڑھاوا ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کے ذہن سازی ہوگی اچھی طرح سے، کیونکہ دوسری قومیں بھی وہاں پڑھنے آتی ہیں۔ ابھی تو نفرت کا بیج بویا گیا ہے، نفرت سکھائی گئی ہے، مگر اس کلچرل ایکٹیویٹیز ہونے کی وجہ سے قومیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گی، جو عام اسٹوڈنٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے گا۔ باقی جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حکمران طبقوں کی جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب جو گاؤں سے نکلا ہوا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آ کر پڑھ کر واپس اپنے گاؤں جائے گا تو وہ وڈیرے اور سردار سے سوال کر سکے گا کہ آپ جو یہ کر رہے ہو یہ ہمارے خلاف ہم سے زیادتی کر رہے ہیں،
और ये नहीं होना चाहिए। आपका हमें पता है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपने आज ही वापस सिंध की तरफ आपने सफ़र करना है, तो आप पंजाब में आए सिंध से, आप काफ़ी इन दिनों से पंजाब का दौरा कर रहे हैं। आपने वहाँ और यहाँ के स्टूडेंट्स की साइकी में, उनकी नफ्सियात में या उनकी मेंटल अप्रोच में क्या फ़र्क देखा, और कैसे मुमकिन है, जैसे आपने अभी बताया कि हुकाम जो हैं वो एक प्रोपेगेंडा करते हैं एक नेशन से दूसरी नेशन के ख़िलाफ़, एक कौमियत से दूसरी कौमियत के ख़िलाफ़, इनको कैसे ऐसा हो सकता है कि इनकी जो आम आदमी की, आम आवाम की बात है, हुक्मरानों की नहीं, प्रोपेगेंडा मशीनरियों की नहीं, उनको एक दूसरे तक पहुंचाया जाए और इनको एक करीब लाया जा सकता है? क्योंकि आप सिंध से हैं, पंजाब का दौरा किया है, फ़र्क क्या है और कैसे करीब लाया जा सकता है? जो मैंने चीज़ देखी, अब एक बात तो क्लियर है कि हर जगह पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सियासत की अलग भी पता नहीं है, और वहाँ पे भी सिंध में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं। मगर थोड़ा बहुत ये फ़र्क किया जा सकता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को कम से कम ये पता है कि हमारे ख़िलाफ़ ज़्यादती हो रही है, हमसे ज़्यादती हो रही है। वो उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, नहीं बोलते, वो एक अलग बात है। मगर मुझे जो नज़र आया वो ये है कि यहाँ पर जो बाहर से स्टूडेंट आ रहा है उसको अपने मसाइल का पता है, मगर जो यहाँ का रहने वाला स्टूडेंट है उसको नहीं पता कि हमारे साथ कौन सी ज़्यादती हो रही है और हमें क्या करना चाहिए। और वहाँ पे कम से कम ये है कि थोड़ा बहुत उनको ये पता होता है कि सियासत क्या है या ये सब क्यों हो रहा है, या अपने मसाइल का पता होता है। मगर यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ ये ज़्यादती की गई है और उसका माइंड वॉश इस तरह से किया गया है कि आप सिर्फ दूसरी दुनिया जहान की सारी एक्टिविटीज़ कर लें, मगर आप अपने मसाइल के ऊपर ना सोचें, ना उसके ऊपर बात करें। इनको कैसे जो प्रोपेगेंडा एक रियासती तौर पर, या आप कह सकते हैं हुकाम ने, जो हुकाम के परवरदा हैं, उन्होंने एक बनाया है कि ये नेशन जो है वो इसकी दुश्मन है, वो उसकी दुश्मन है, वो उसके मुखालिफ है, इनको करीब कैसे लाया जा सकता है? ये देखिए, मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी में, जो उसकी ज़ुबान दूसरी थी, मेरी ज़ुबान सिंधी है, ज़ाहिर सी बात है। तो जब हमारी दोस्ती हुई और हमने उठना बैठना शुरू किया, हमारी नफसियात एक दूसरे के साथ मिली, तो पहले तो यही सोच थी, और उसने मुझे कहा भी कि यार मैंने तो ये सोचा हुआ था कि ये लोग इस तरह के होते हैं, सिंधी इस तरह के होते हैं, या मेरे जहन में भी उस वक्त काफ़ी जो मुगालते थे कि यार ये शायद हमारी दोस्ती ना चल सके, या ये इस तरह के लोग होते हैं। फिर ये जो गैप है वो दोस्ती से ही ख़त्म किया जा सकता है। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करते या उनको अपने पास नहीं बुलाते, एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, अगर कोई आप किताब पढ़ें उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, और चाय के कप के ऊपर आप डिस्कशन नहीं करते, और अगर आप सिंध में बैठे हो और पंजाब के स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ आप बात करो या उसके बारे में सोचो कि यार ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, आपने मीडिया देखा, सोशल मीडिया पे देखा, पर जब तक आप उसके साथ नहीं बैठेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि असल हकीकत क्या है। इसी तरह यहाँ पे जो दोस्त बैठे हैं तो वहाँ भी उन दोस्तों के साथ बैठना चाहिए जो सिंध में स्टूडेंट बैठा है। मसाइल तकरीबन सबके सेम ही हैं, अगर मसला ये है कि उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना चाहिए, एक दूसरे से राब्ते बढ़ाने चाहिए, और एक दूसरे के मसाइल को समझना चाहिए, और एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। हम आपके तवज्जुह से ये पैगाम पहुँचाते हैं कि हम सिंधियों को सल्यूट करते हैं। हम शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सचल सरमस्त, शेख अयाज़, इन सब के फ़ैन हैं। उन्होंने मोहब्बतें बांटी हैं, मज़ाहमत की हमें एक नई रोशनी भी उन्होंने दी है, तो हम उनको भी सल्यूट करते हैं। हम सिंधी भाइयों के लिए, सिंधी स्टूडेंट्स के लिए, सिंधी कौम के लिए ये पैगाम भेजते हैं कि हम तो यहाँ बैठ के भी ये कहते हैं, सिंध जिए, सिंध वाला जिए, सिंधी टोपी अजरक वाला जिए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने कीमती वक्त में से वक्त नायत फरमाया। मज़ीद जब भी आप पंजाब आइएगा, लाहौर आइएगा, ज़रूर वक्त नायत फरमाइएगा। थैंक यू सो मच।